অসংখ্য ধন্যবাদ সমস্ত সম্মানিত অতিথিদের, পাশাপাশি অনেক অনেক অভিনন্দন সমস্ত পুরস্কার প্রাপকদের। বরমবলায়া ফারমানি ইয়াগুলো তাবুকাং ককনারগনানি বাগি কয়নাই হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ইয়াকচু মোচাং জিষ্ণু দেববর্মা সারনো ককনারগনানি বাগি আং কয়নাই হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ইয়াকচু মোচাং জিষ্ণু দেববর্মা জিনো। নমস্কার, যতন করুমখা মঞ্চে উপস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কুমারী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, আমাদের অ্যাসেম্বলি স্পিকার তথা প্রবীণ রাজনৈতিকবিদ শ্রী রতন চক্রবর্তী মহোদয়, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, এমএলএ, চেয়ারম্যান, যারা অফিসাররা আছেন, মুখ্য সচিব এবং ভাই ও বোনেরা, আমার আগে কুমারী প্রতিমা ভৌমিক বলেছেন আজকে একটাই ঐতিহাসিক দিন। ত্রিপুরা রাজ্যের 50 বছর পূর্তি হলো স্টেট হওয়ার, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে জার্নি, যাকে বলে সফর বলে, সেটা অনেক লম্বা। রাজন্য যুগ থেকে সি ক্যাটাগরি স্টেট থেকে আরম্ভ করে আবার ইউনিয়ন টেরিটরি, কেন্দ্রশাসিত রাজ্যর পর 50 বছর পূর্বে আমরা পূর্ণ রাজ্য পেয়েছি। আগে আমি দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যতে একটা ডিএম, একটা এসপি ছিল, যারা বয়স্করা জানবেন। আজকে 8টি ডিস্ট্রিক্ট, পুলিশ ফোর্স, টিএসআর, প্রশাসনকে কিভাবে প্রশাসিত করা যায় উন্নতির জন্য, এবং এছাড়াও অনেক কিছু বদলে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে। অনেকজনের মুখে শুনি যে আগেকার সময়ে নাকি রেল লাইন নিয়ে আসতে হলে আন্দোলন করতে হতো, লড়াই করতে হতো। অনেকজনে বলে এই কথা, আমরা লড়াই করে নিয়ে এসেছি, আন্দোলন করে নিয়ে এসেছি। আজকে কিন্তু উন্নতির জন্য আন্দোলন করতে হয় না। আমাদের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে আমাদের সম্মানীয় ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত ভাই, ওনাকে নমস্কার জানায় এবং স্বাগত জানায় ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে। আরো কিছু বলার আগে ওনাকে আগে ধন্যবাদ দিতে হয় আমাদেরকে, এত বড় কাজ উনি করে দিলেন কিছু সময়ের মধ্যে। 23 বছরের পুরানো একটা সমস্যা ছিল, রিয়াং শরণার্থী বা ব্রু শরণার্থী মিজোরাম থেকে এসে 23 বছর ধরে নিজের দেশে নিজের নাগরিকরা রিফিউজির মতন বসবাস করত। উনি এসে ওনার মার্গদর্শনে আজকে ওরা পুনর্বাসনের পথে, পুনর্বাসন হচ্ছে। সেটা শুধু একটা প্রশাসনিক সমস্যা ছিল না, সেটা মানবিক সমস্যা ছিল, ভারতবর্ষের সম্মানের সমস্যা ছিল। উনি এসে সেটা সমস্যার সমাধান করলেন, আর খুব সুন্দরভাবে করলেন। ওনাকে ত্রিপুরার পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরার 37 লক্ষ জনগণের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই। যখনই ওনার কাছে আমরা গেছি কোনো সাহায্যের জন্য, উনি সবসময় হ্যাঁ বলেছেন ত্রিপুরার জন্য।
আমাদের প্রধানমন্ত্রীও উনি এসেছেন বীরবৃক্ষ মানিক্যের, মহারাজা বীরবৃক্ষ মানিক্যের মূর্তি উন্মোচন করার জন্য এসেছেন। আবার উনি এসেছেন এয়ারপোর্ট খোলার জন্য। এটা আমাদের গর্বের কথা যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের ডাকে সাড়া দেয়। সেটা কোনো স্পর্শকাতর হওয়ার ব্যাপার নয়, অনেকজনের স্পর্শকাতর হয়, ওভার সেন্সিটিভ হওয়ার ব্যাপার নয়। সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের গর্বের কথা যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ভারতবর্ষের মতো মহাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পৃথিবীর সর্ববৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী ছোট একটা রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্যের ডাকে সবসময় সাড়া দেয়। সেটা আমাদের গর্বের কথা। আর বলছিলাম উন্নতি করার জন্য এখন আর আন্দোলন লড়াই করতে হয় না। প্রায় শুনি রেল লাইন বসানোর জন্য আন্দোলন হয়েছে, লড়াই হয়েছে, সেটা করার জন্য লড়াই হয়েছে। এখন লড়াই করতে হয় না উন্নতির জন্য। উন্নতির জন্য মিশন মোডে কাজ করতে হয়। মিশন মোডে কাজ করতে হয়, সবকে নিয়ে কাজ করতে হয়। যারা আজকাল আমরা স্টেট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি ওদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই। এই অ্যাওয়ার্ড শুধু অ্যাওয়ার্ড নয়, এটা স্বীকৃতি সরকারের সবার প্রচেষ্টায় উন্নতি হয়। আজকে যে আমরা স্টেট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে যে সবার প্রচেষ্টায়, সবকা প্রয়াস যেটা বলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সেটা দিয়ে ত্রিপুরার উন্নতি হবে। সেটারই একটা স্বীকারোক্তি। আমি অভিনন্দন জানাই যারা পুরস্কার প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ডিরা আছেন, এবং আশা করব ভবিষ্যতেও আপনারা কাজ করবেন, সবকে নিয়ে কাজ করবেন, সমাজের জন্য কাজ করবেন, রাজ্যের জন্য কাজ করবেন, এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের জন্য কাজ করবেন। কারণ ত্রিপুরা ছোট হতে পারে, ত্রিপুরার একটা নিজস্ব কালচার আছে, নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে, এবং আগামী দিনেও আমাদের সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি আজকে উন্মোচন করবেন 2047 সনে একটা আমরা ডকুমেন্ট বানিয়েছি, এটার নাম দেখছি লক্ষ্য বা লক্ষ্য হিন্দিতে। সেটা একটা কি বলবো ব্লুপ্রিন্ট, একটা রূপরেখা যে ত্রিপুরা কি দিশায় চলা উচিত, কি দিশায় গেলে ত্রিপুরা উন্নত হবে আরো। আর সেটা শুধুমাত্র একটা বই নয়, একটা পুস্তক নয়, সেখানে প্ল্যানিং আছে কি করে করা যাবে, মনিটরিং এর কাজ কিভাবে করা যাবে। সেটা ইংলিশে বলে আমরা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ, পুরোটুকে একসঙ্গে দেখা, একটা লক্ষ্য, একটা রাস্তা, আর সেই রাস্তা কিভাবে বানানো, সেটাই লক্ষ্য ত্রিপুরা রাজ্যের, বা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাই বলুন, বা দিশা। তাই আজকে আমাদের সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার উন্মোচন করবেন। আমরা খুব গর্বিত, উনি আমাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক দিনে আছেন। আমাদের মুখ্য সচিব বলেছেন এই বছরটা খুবই ঐতিহাসিক বছর ছিল। একদিকে ভারতবর্ষের, আমাদের রাষ্ট্রের 75 বছর স্বাধীনতার, আরেকদিকে আমাদের রাজ্যের 50 বছর পূর্ণ রাজ্য। অনেকগুলি কার্যক্রম আমরা ঠিকঠাক করেছিলাম, করব বলে করতে পারিনি ওমিক্রনের কারণে। পরবর্তীকালে যদি আমরা পারি আমরা নিশ্চয়ই করব। আমি আর আমার এই আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে গেছেন, ওনাকে আবার স্বাগত জানাই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। ঐতিহাসিক দিনে, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উনি আমাদের সঙ্গে আছেন। এই বলে আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। জয় ত্রিপুরা।
অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী যিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়কে তার এই প্রেরণাদ্যত বক্তব্যের জন্য। নাও, Government of Tripura is thankful to Ministry of Communication, Government of India, for coming up with the stamp in connection with 50 years of Tripura's statehood, which is a historical moment for Tripura. Now, I would like to request Sri Amit Shah Ji, Honorable Union Minister for Home Affairs and Minister of Cooperation, Government of India, Sri Devu Singh Chauhan Ji, Honorable Minister of State for Communication, Sri Biplab Kumar Dev Sir, Honorable Chief Minister of Tripura, along with that, all honorable dignitaries seated on the dais to release commemorative postage stamp on 50 years of statehood with blow up. धन्यवाद मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तिजनों का। अगर तरल सोने के रूप में जाना जाता है तो प्राकृतिक धूप में इसकी कोई बराबरी नहीं है। अगर वो त्रिपुरा में आर्थिक क्रांति पैदा करने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है, इसीलिए इसे बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा आगरवुड नीति 2021 जारी की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक अगर वृक्षारोपण को दुगना करना है। अब मैं दृश्य मंच पर आसीन श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से इंडिया परफ्यूम आगरवुड पर ब्लो अप जारी करने का अनुरोध करती हूं। থ্যাংক ইউ স্যার। ত্রিপুরা উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে আগামী দিনের লক্ষ্যমাত্রাকে সম্মুখে রেখে লক্ষ্য 2047 এর উপর একটি তথ্যচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। अब मैं दृश्य मंच पर आसीन श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से लक्ष्य 2047 दस्तावेज लॉन्च करने का अनुरोध करती हूं। আমরা রয়েছি 50 বছরের উদযাপনে। আজকে ত্রিপুরার উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে আগামী দিনের লক্ষ্যমাত্রাকে সম্মুখে রেখে লক্ষ্য 2047 প্রকাশিত হলো আপনাদের সকলের সম্মুখে। এবারে বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে, তিনি তার বক্তব্যের আলোকে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করবেন। যতনা খুলুমখা, সবাইকে নমস্কার। আজকের এই ঐতিহাসিক দিন, ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্য দিবসের 50 বছর পূর্তি। আর এই ঐতিহাসিক দিনে আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যিনি রয়েছেন, উনি আর কেউ নন, 2018-তে ত্রিপুরার মুক্তির
যে নায়ক, যিনার নেতৃত্বে আমরা লড়াই করেছিলাম ত্রিপুরাকে নতুনভাবে সুন্দর রাস্তা তৈরি করার সমাধান পেয়েছিলাম, এবং দেশের যশস্বী গৃহমন্ত্রী आदरणीय अमित भाई शाह जी, मंच उपविष्ट त्रिपुरा सरकारेर उपमुख्यमंत्री आदरणीय जिष्णुदेव बर्मा महोदय, केंद्रीय प्रतिमंत्री द्वय श्रीमती प्रतिमा भौमिक महोदया, देवांशु चौहान এবং মঞ্চ উপস্থিত আদরণীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং আমার মন্ত্রী পরিষদের সমস্ত সাথীরা, চিফ সেক্রেটারি সহ উপস্থিত সমস্ত আমার এমএলএ, মেয়র, নির্বাচিত প্রতিনিধি, ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যারা আজকে পুরস্কৃত হয়েছেন আমার মিডিয়ার বন্ধুরা, সবাইকে আমি এই শুভ দিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। বন্ধুরা, 1972 পূর্ণ রাজ্যের যে শুরুয়াত ত্রিপুরা চলা শুরু করেছে, আজকে 2022 21শে জানুয়ারি माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्वे आज जखन देश एक स्वनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये दुई मंत्र के सामने रेखे एगिए जाच्छे, तखन नर्थ इस्टेर राज्यगुलो, जे राज्यगुलो एक समय अवहेलित छिलो, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে 2014তে যখন সরকার আসে, তারপর থেকে পথচলা শুরু হয়েছে নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলো। আর মাননীয় অমিত ভাই শাহজি, যিনি এখানে আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি রয়েছেন, উনি নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলো একত্রিত করার জন্য নেডা তৈরি করেছেন। আর সেই নেডা और माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व सब मिले आज नॉर्थ ईस्टर 8 राज्यों, अष्टलक्ष्मी, नियो इंजिन, नतून मानसिकता, नतून भारत, आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट সেই দিশাতে কাজ করছে, और ত্রিপুরাও সেই জায়গায় আছে। বন্ধুরা, 2017-18তে যখন সরকার আমরা এসেছিলাম, তখন পার ক্যাপিটা ইনকাম ত্রিপুরা রাজ্যের যে প্রতি পরিবারের ইনকাম, প্রতি ব্যক্তি ইনকাম ছিল, সেটা 1,25,674 টাকা। আর আজকের দিনে 2020-21-এ সেটা 1,29,995 টাকা। কৃষকদের ইনকাম যদি দেখি, 2017-18তে 6,580 টাকা, আর সেখান থেকে বেরিয়ে আজকে ত্রিপুরা স্বনির্ভর কৃষক 11,093 টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট দেখি, তো একসময় 1200 কোটি টাকার কাজ ন্যাশনাল হাইওয়ে হতো, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের হীরা প্লাস মডেলে আজ 11,000 কোটি টাকার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কাজ চলছে। তার সঙ্গে সঙ্গে নর্থ ইস্টের সবচেয়ে আধুনিকতম এয়ারপোর্ট যদি কোনো রাজ্যের কাছে আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের কাছে আছে। বন্ধুরা, যদি এডুকেশনে যাই, বিদ্যাজ্যোতি, 100টি সিবিএসই স্কুল সরকারি ভাবে প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই সরকার দিতে সক্ষম হয়েছে। আজকে গরিবের অন্তোদয় পরিবারের কোন লোক, কোন ছেলে মেয়ে সে সিবিএসই স্কুলে পড়ার অধিকার পেয়েছে। হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে এই কোভিডের পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার সঙ্গে সঙ্গে পুরো ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরারও হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার
আমূল পরিবর্তন এসেছে। আজকে যে বড় মাত্রায় ত্রিপুরা থেকে বাইরে রেফারেল হতো, চিকিৎসার জন্য যেত, তা প্রায় আধা হয়ে গেছে বন্ধুরা। তার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা রোজগারের ক্ষেত্র দেখি, এই সরকার আসার পর ঘরে ঘরে রোজগার দিবে বলেছে, আত্মনির্ভর মানসিকতা এই সরকার তৈরি করেছে। আজকে নজওয়ান জব ক্রিয়েটার তৈরি হয়েছে। কম সময়ে কোভিডের পরিস্থিতিতে 2 বছর আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে, তারপরেও আমরা 1,25,000 রোজগার সৃজন করেছি। তার মধ্যে প্রায় 10,000 সরকারি চাকরি, কিছু পাইপলাইনে আছে। 4,000-এর কাছাকাছি সেলফ হেল্প গ্রুপ ছিল আমাদের বোনেদের, 100 কোটি টাকা ইকোনমি। আজকে 2 বছর কোভিডের পরিস্থিতিতেও আমার বোনেরা 26,000 নতুন সেলফ হেল্প গ্রুপ তৈরি করেছে। আত্মনির্ভর স্বনির্ভর মহিলা তৈরি করার যে রাস্তা সুগম হয়েছে, এবং তাতে প্রায় 3.25 লাখ গ্রামীণ বোনেরা যুক্ত আছেন। প্রায় 1,000 কোটি টাকার ইকোনমি তৈরি হয়েছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা সরকার এই প্রথমবার 500 পুলিশ কনস্টেবল অনলি ফর ফিমেল মহিলাদের জন্য নির্ধারিত করে তার ব্যবস্থা করতে চলছে। মহিলাদের জন্য হোম ডিপার্টমেন্টে 10% রিজার্ভেশন এই সরকার এনেছে। টিএসআর এ মহিলা নিয়োগ এই সরকার এনেছে। আজকে টিএসআর এ যাওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে মহিলারা রাস্তায় নামে। এটা ত্রিপুরার উন্নতি হয়েছে, এটা ত্রিপুরার সুগম হয়েছে রাস্তা বন্ধুরা। স্বনির্ভর আত্মনির্ভর মহিলা তৈরি হয়েছে। আত্মনির্ভর মহিলাই আত্মনির্ভর রাজ্য দিতে পারে, গ্রাম দিতে পারে, জেলা দিতে পারে। সেই জায়গাতে রাজ্য সরকার কাজ করছে। মহিলাদের উপরে উৎপীড়ন কমেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কনভিকশন রেট বেড়েছে। তাই আজকের এই শুভ দিনে যে 25 বছর আগে গিয়ে আমরা কি করব, আজকে নজওয়ান ছেলে মেয়ে আজকে দেখে নেবে যে 2047 পর্যন্ত ত্রিপুরায় কোথায় যাবে, তাহলে আমি কোথায় যাব, কি করব, কোন স্ট্রিমে পড়বো, কোথায় নির্ণয় করব, সেটা তয় করে নেবে আজকের নজওয়ান। আমি যখন নজওয়ান ছিলাম তখন আমার কাছে সেই সুযোগ ছিল না। আজকে নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে যখন আমরা কাজ করছি, তো 25 বছর কি হবে আজকে আদরণীয় গৃহমন্ত্রীর হাত ধরে ত্রিপুরাবাসীর সামনে প্রস্তুত হয়ে গেছে। আগামী যে 25 বছর ত্রিপুরা রাজ্যের নজওয়ান বা রোজগার কোথায় হবে, ত্রিপুরা কোথায় পৌঁছে যাবে, সেই দিশাতে আমরা কাজ করেছি বন্ধুরা। আমি আশা করি আজকে আমাদের সঙ্গে যে জুড়ে আছেন আদরণীয় গৃহমন্ত্রী মহোদয়, উনার নেতৃত্বে ভারত এক যশস্বী গৃহমন্ত্রী পেয়েছে। যদি অমিত ভাইয়ের নাম উচ্চারণ করি, সেই জায়গায় যদি 370 আর্টিকেল 35 ত্রিপুরা ভারত থেকে মুক্তি হয়েছে, সেই দুটি শব্দ না হয় তাহলে তার সম্পূর্ণতা আসবে না বন্ধুরা। কোনোদিন কল্পনা করেছিলাম না, ছোটবেলা থেকে 370 আর্টিকেল 35 এর বিষয়ে শুনেছি যে সেটা ভারতবর্ষের জন্য এক কলঙ্কময় অধ্যায় ছিল, কিন্তু যে ব্যক্তি সেই 370 আর্টিকেল 35 এ সমাপ্ত করেছে ভারতবর্ষ থেকে, সে আর কেউ নয়, আদরণীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি। আমি করজোড়ে আপনাকে প্রণাম জানাই। যেটা আমাদের জীবনকালের স্বপ্ন ছিল, সেটা আপনার মাধ্যমে হয়েছে বন্ধুরা, মাননীয় গৃহমন্ত্রীর মাধ্যমে হয়েছে, আর প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে। তাই আজকের শুভ দিনে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে, স্বাভিমানী ত্রিপুরাবাসীকে স্বাগত জানাই। আপনার 25 বছরের ভাগ্যের নির্ধারণ মাননীয় মোদীর নেতৃত্বে আমরা সাকার করার জন্য প্রস্তুতিকরণ করেছি। আপনাদের সাথ চাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव जी का बहुत बहुत आभार आपके इस बहुमूल्य वक्तव्य के लिए। अब मैं दृश्य मंच पर आसीन श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करूंगी कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सभा को संबोधित करें। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित त्रिपुरा के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन जी, भारत सरकार की
मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई देवू सिंह चौहान जी, सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर रतन चक्रवर्ती जी, रतनलाल नाथ, शिक्षा मंत्री त्रिपुरा सरकार, प्रणजीत सिंह रॉय, श्री मनोज कांति देव, श्री मेवर कुमार जमातिया जी, सुश्री संतना चकमा जी, राम प्रसाद पॉल जी, भगवान चंद्र दास जी, सुशांता चौधरी जी, आलोक कुमार मुख्य सचिव त्रिपुरा सरकार और उपस्थित सभी विधायक जन, चुने हुए प्रतिनिधि और देश और विदेश में बैठे हुए त्रिपुरा के सभी मूल निवासियों को मैं त्रिपुरा दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हर राज्य के लिए अपने स्थापना का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और आज त्रिपुरा स्वर्ण जयंती अपनी मनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये वर्ष और ये दिन दोनों त्रिपुरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ही दिन मणिपुर और मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के दोनों राज्य भी अपना स्थापना दिन मना रहे हैं। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री और समस्त मणिपुर की जनता को स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मेघालय के मुख्यमंत्री जी और मेघालय की समस्त जनता को भी मैं हृदयपूर्वक मेघालय के स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं आपके सामने वर्चुअल मोड से उपस्थित हूं, तब यहीं दूर से ही मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर मेरी श्रद्धा उनके चरणों में समर्पित कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि ये मां त्रिपुरा सुंदरी न केवल त्रिपुरा, समग्र देश के आस्थावान लोगों के श्रद्धा का केंद्र है और मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से ही आज त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है और सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर रहा है। त्रिपुरा भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा अपना एक इतिहास रखने वाला राज्य है और राज्य के 50 वर्ष जब समाप्त होते हैं, तब मैं मानता हूं कि त्रिपुरा राज्य की प्रगति के लिए हमें एक संकल्प करना चाहिए। 25 साल के बाद त्रिपुरा कहां होगा, उसकी संकल्पना करनी चाहिए और आज मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने संकल्प 2047 रखकर त्रिपुरा की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रास्ते, आज इसीलिए भारत सरकार के पोस्ट डिपार्टमेंट ने राज्य का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है और इंडिया परफ्यूम की भी एक लोगो का लॉन्चिंग आज किया गया है। मैं मानता हूं जिन लोगों को पुरस्कार मिला है वो सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत सारे कार्यक्रम श्री विप्लव देव के नेतृत्व में 15 तारीख से 21 तारीख के बीच में हुए हैं और ये सभी कार्यक्रम जिस प्रकार से कोविड होते हुए भी जनता का जिसको समर्थन मिला है, उससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जनता इस त्रिपुरा दिन के उत्सव में मन से हिस्सा लिया है और जनता का आशीर्वाद आज भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता विप्लव देव के साथ है। मित्रों, बंटवारे के समय से अनेक विभीषिकाओं को झेलने का काम ये त्रिपुरा राज्य ने किया है और बंटवारे के समय महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य एक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने भारतीय संघ के साथ जुड़ने का अपनी घोषणा की थी। जब से विवाद चालू हुआ, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले भारतीय संघ का समर्थन करने का काम किया था और जब मुस्लिम आतताई
पाकिस्तान की ओर से, पूर्वी पाकिस्तान की ओर से त्रिपुरा में घुसने लगे थे, तब महारानी कंचन प्रभा जी ने ही शिलोंग से सरदार पटेल के साथ बात कर मदद मांगी थी, और सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आसाम से वायुसेना भेजकर त्रिपुरा को बचाने का काम किया था। आज त्रिपुरा के स्थापना दिन पर मैं सरदार पटेल को भी निश्चित याद करना चाहूंगा, जिनके त्वरित और दूरंदेशी निर्णय के कारण आज हमारा त्रिपुरा महान भारत का एक हिस्सा है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी का बहुत सारा योगदान त्रिपुरा के पिंड बनाने में रहा है। रुद्रसागर तालाब हो, निर्महल हो, शिक्षा हेतु सैकड़ों एकड़ पुश्तैनी जमीन दान करनी हो, अगरतला का हवाई अड्डा बनाना हो, हर क्षेत्र में राजा साहब ने त्रिपुरा के विकास की नींव डाली, और इसीलिए राजा साहब की स्मृति में त्रिपुरा एयरपोर्ट का नाम अपनी नीतियों को बदलकर भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा साहब के नाम पर रखा है, और एक 438 करोड़ की लागत से भव्य और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बनाने का काम त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा का एयरपोर्ट जो लोग देखते हैं वो बताते हैं कि पुराने एयरपोर्ट की तुलना में त्रिपुरा का एयरपोर्ट बहुत अच्छा और आधुनिक है। इस प्रकार का एयरपोर्ट राजा साहब के नाम के साथ जोड़ने का काम किया है। महाराजा के समय में लगभग 100 साल पुरानी 150 से ज्यादा स्कूलें भी हैं, और मैं मानता हूं कि इन्होंने हमेशा टैलेंट को बढ़ावा देने का काम किया था, और टैलेंट बढ़ाने में सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस को अगर त्रिपुरा महाराजा आर्थिक सहयोग न करते तो वो शायद विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में और देश के लिए इतना गौरव प्राप्त न कर पाते। आज मैं स्थापना दिन के दिन पर महाराजा जी को भी प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देकर बात करना चाहता हूं। मित्रों, लक्ष्य 2047 हमारे सामने आज घोषित किया गया है। ये सिर्फ बुकलेट नहीं है, ये कोई 50 पन्नों का दस्तावेज नहीं है, ये त्रिपुरा की जनता की आशा और आकांक्षा का चित्रीकरण है। ये कोई एक बुकलेट नहीं है, त्रिपुरा के भविष्य का खाका जिसमें है, इस प्रकार का एक महान दस्तावेज है। आने वाली पीढ़ियां और विशेषकर युवा त्रिपुरा कैसा बनाएंगे, त्रिपुरा कैसा गढ़ेंगे और त्रिपुरा के विकास में कैसा योगदान करेंगे, इसका एक खाका है। जो मुख्यतः 6 क्षेत्र इसके अंदर चिन्हित किए गए हैं: कृषि, सामाजिक समरसता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, उद्योग और इन्वेस्टमेंट, प्रशासनिक सुधार और दूरसंचार और मदद रसद। इस सारे क्षेत्रों में किस प्रकार से त्रिपुरा आगे बढ़ेगा, इसका एक खाका रखने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 130 करोड़ की जनता के सामने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त ये 25 साल के कालखंड को संकल्प का कालखंड बताने का काम किया है। क्योंकि आज ही भारत की जनता ने तय करना पड़ेगा कि जब भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाता होगा, उस वक्त भारत कहां होगा, हर क्षेत्र में हम कहां पहुंचे होंगे, और वो कवायद ही हमें महान बना सकती है, दुनिया के नक्शे पर अपना सम्मानजनक स्थान निश्चित कर सकती है। मित्रों, ये 25 साल प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक त्रिपुरावासी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने के 25 वर्ष हैं। अगर देश को छलांग लगानी है, दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करना है, तो ये 25 साल को संकल्प के काल के रूप में मानकर आगे बढ़ना होगा, और हर व्यक्ति ने अपनी सोच छोड़कर देश को आगे बढ़ाने की सोच लेकर आगे बढ़ना होगा। बहुत लंबा कालखंड देश गुलामी में रहा, अंग्रेजों की गुलामी हमने झेली, मुगलों की भी गुलामी हमने झेली, परंतु अब जब देश आजाद है, तब गुलामी के कालखंड के कारण जो हम पिछड़े हैं, वो आज क्षतिपूर्ति करने का ये 25 साल है। और मैं मानता हूं कि
विप्लव जी ने लक्ष्य 2047 नामक जो एक दस्तावेज त्रिपुरा की जनता के सामने रखा है, त्रिपुरा के युवाओं के सामने रखा है, वो त्रिपुरा को महान बनाने की, त्रिपुरा को विकसित बनाने की, त्रिपुरा को सुरक्षित बनाने की और त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम करेगा। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट की जहां तक मैं बात करूं, मोदी जी ने शासन में आने के बाद हमेशा नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के बीच की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है, एक मानसिकता को बदलने का प्रयास किया है और पूरा नॉर्थ ईस्ट विकसित हो, इसलिए उन्होंने 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी का उपनाम देकर उसके विकास का संकल्प किया और हर 15 दिन में कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाए, इस प्रकार की रचना करी है और ढेर सारे काम नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज जमीन पर उतरे। नॉर्थ ईस्ट एक जमाने में करप्शन के लिए जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट में जो पैसा पहुंचता था दिल्ली, जाता था दिल्ली से, जनता तक पहुंचता नहीं था। आज मैं गौरव के साथ कह रहा हूं कि 8 राज्यों में नेडा की सरकार है और जो पैसा दिल्ली से जाता है वो पूरा का पूरा विकास में खर्च होता है। मित्रों, त्रिपुरा में भी ढेर सारे विकास के काम हुए। त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट के गेटवे के रूप में विकसित करने का भी काम हो रहा है। रोड और रेलवे से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल वाटरवे कनेक्टिविटी के कारण बहुत विकास आने वाले दिनों में, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में त्रिपुरा में आने वाला है। अगरतला अखौरा रेल लिंक का काम भी तेजी से चल रहा है। शांति और स्टेबिलिटी, त्रिपुरा के अंदर विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन ने मिलकर हमारी त्रिपुरा सरकार ने शांति लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। कभी उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, आर्म ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार, जातीय तनाव, इसकी जगह आज विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, इस दिशा में त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि 2019 में NLFT के साथ समझौता कर भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, जिससे आज एक अनरेस्ट का वातावरण समाप्त हो गया है। 100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया और 40 करोड़ रुपए का रुपया त्रिपुरा सरकार को जारी भी कर दिया गया है। ब्रू समझौते में भी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज देकर लगभग 37,000 लोगों की 30 साल पुरानी समस्या का समाधान करने का काम किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ब्रू शरणार्थी भाई अब मेन स्ट्रीम में आकर भारत के और त्रिपुरा के विकास में अपना योगदान दे देंगे। लगभग 1.5 लाख रुपए की आवासीय सहायता भारत सरकार ने दी है। त्रिपुरा सरकार ने प्लॉट दिए हैं। 2 वर्षों तक 5,000 रुपया प्रति माह उनको मिलना है, मुफ्त राशन मिलना है और अब आगे उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हुए नई पीढ़ी बने और उनको रोजगारी भी मिले, इस प्रकार का आगे आयोजन भी हुआ है। मित्रों, कम्युनिस्ट शासन ने त्रिपुरा को बहुत पिछड़ा राज्य बनाने में कोई कसर नहीं। प्रतिद्वंदियों पर हिंसा करना ही कम्युनिस्टों की राजनीति रही। कभी भी विकास के दृष्टिकोण से सरकारें चली ही नहीं और मुझे बड़ा अफसोस है कि त्रिपुरा जैसा महत्वपूर्ण राज्य 2 दशक तक विकास से महरूम रहा, मगर त्रिपुरा ने मोदी जी पर श्रद्धा रखी, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार बनाई और आज त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल रहा है। ये 2 दशक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 450 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग सालों सालों तक अपने घर नहीं जा पाए, घूमते रहे अपने ही राज्य में, अपने ही देश में, वो बेसहारा होकर, शरणार्थी होकर रहे। मगर आज इस सब का जो प्रयास था और सबका जो तपस्या थी, इसका सुफल मिलने लगा है और त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल रहा है।
ये त्रिपुरा सरकार बनने के बाद विप्लव देव ने नशा मुक्त त्रिपुरा ये अभियान लिया और जो नशे की तस्करी राज्य सरकार के आश्वासन से चल रही थी उस पर कड़ाई करने का काम किया है। त्रिपुरा अब ड्रग तस्करों के लिए सुरक्षित मार्ग नहीं है। विप्लव देव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस अभियान के कारण न केवल त्रिपुरा के युवा नशे से मुक्त हुए हैं, परंतु देश भर के अंदर ड्रग आने का सबसे बड़ा रास्ता आपने बंद किया है। इसलिए मैं भारत सरकार की ओर से त्रिपुरा सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस दृढ़ता के साथ त्रिपुरा ने इसको हाथ में लिया है, नशीले पदार्थ से जुड़े सैकड़ों मामले दर्ज किए गए, नशीली टैबलेट्स और हीरोइन जब्त की गई है, कुछ ऐसी दवाइयां बनाई जाती थी उसको भी रोकने का काम किया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है तो जनजाति समाज को नशा मुक्ति अभियान से सबसे बड़ा फायदा हुआ है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमारा जनजाति समाज हुआ है। मित्रों, डबल इंजन की सरकार 2018 से जब से चल रही है, आमूल चूर परिवर्तन हुआ है। नियत, नीति और नियम, ये 3 N के साथ त्रिपुरा सरकार आगे बढ़ी है और डबल इंजन सरकार का ढेर सारा फायदा त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलता है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2017-18 में त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपया थी। 3 ही साल के अंदर 2020-21 में 1 लाख से बढ़कर 1,30,000 हुई है। मैं मानता हूं शायद किसी भी राज्य का 30% का बढ़ोतरी नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि डबल इंजन सरकार की त्रिपुरा के अंदर है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन ने जिस प्रकार से सुशासन को नीचे उतारा है, इसी का ये परिणाम है। किसानों की मासिक आय की बात करें तो 15-16 में 6,580 रुपया था और 2020-21 में 6,580 से बढ़कर 11,096 रुपया। मतलब मोदी जी ने जो संकल्प रखा था किसानों की आय 2 गुना करने का, उसको त्रिपुरा सरकार ने सिद्ध किया है, पूरा किया है। ये भी बधाई के पात्र है। लगभग 2,000 करोड़ का निवेश आया है। त्रिपुरा की इन्वेस्टमेंट समिट में 100 से ज्यादा उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया, अपनी संभावनाओं को तराशी है। 2,800 करोड़ रुपए की धनराशि के ज्ञापन समझौते हुए। सिर्फ आईटी में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बहुत अच्छी हुई। गंभीर गुनाहों में 26% की कटौती शायद ही किसी राज्य ने 2 साल के अंदर सिद्ध की होगी। कृषि के क्षेत्र में भी त्रिपुरा ने ढेर सारी उपलब्धियां की हैं। लगभग 86,000 हेक्टेयर को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किया गया। वास्तविक भूमिहीन टेनेंट किसानों के लिए मुख्यमंत्री बरगदर योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री सिंचाई कार्यक्रम के तहत 65,000 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 2.5 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, जिससे ढेर सारे छोटे किसानों को लोन लेने की भी जरूरत नहीं मिलती। त्रिपुरा राज्य की स्थापना के बाद पहली बार विप्लव देव सरकार बनने के बाद, भाजपा सरकार बनने के बाद 41,000 किसानों से 72,000 मैट्रिक टन धान 130 करोड़ रुपए का भुगतान कर खरीदा गया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैविक खेती में भी त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है। लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अनानास, सुगंधित चावल, अदरक, हल्दी और मिर्ची उगाई गई। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जैविक खेती का महत्व बहुत बढ़ने वाला है। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, आपने जो बेस डालने का काम किया है, ये बेस पर एक मजबूत इमारत होगी और किसानों को ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट होने के कारण लगभग 2 गुना भाव मिलने की संभावनाएं हैं। और जो मोदी जी ने ट्रेन चालू करी है किसानों के लिए, वो ट्रेन से त्रिपुरा के किसानों का उत्पाद दिल्ली तक बहुत सरलता से पहुंच सकता है। इसके अलावा सुपारी, सतकोरा और अदरक का भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात हुआ है। कटहल का भी निर्यात हुआ है। वुड एप्पल और इमली का निर्यात भी हुआ है और अनानास का भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात हुआ है। बांबू की खेती को बेस बनाकर लगभग 1000 बांबू कारीगरों को प्रशिक्षित करने का काम भी किया है। मित्रों, गरीब के लिए हर व्यक्ति को घर मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 7 लाख गरीब परिवारों को घर देने का काम आगे बढ़ा है। हर परिवार को लगभग कोरोना हुआ तब से फ्री ऑफ कॉस्ट राशन नरेंद्र मोदी सरकार प्रति व्यक्ति दे रही है 5 किलो। और कोविड के अंदर बहुत अच्छा प्रबंधन त्रिपुरा सरकार ने किया। इसके कारण कम से कम नुकसान में आज हम कोविड के बाहर लगभग आते हुए दिखाई पड़ते। वैक्सीनेशन ड्राइव को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया है और लगभग लाभार्थियों की संख्या में घरों में लगभग 90% को घर बनाने की मंजूरी दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ढेर सारे काम हुए। 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को 542 किलोमीटर की मंजूरी दी है। इसका काम भी चालू हो रहा है। अगरतला अकोला रेल लिंक निर्माणाधीन है। निश्चितपुर में एकीकृत चेकपोस्ट बनाई है। 6 एक्सप्रेस चैन ट्रेन अगरतला से देश के जुदे जुदे हिस्सों में जा रही हैं। किसान ट्रेनें और डेमो ट्रेन भी चलाई जा रही है। फ्लोटिंग जेट्टी के उद्घाटन के साथ श्रीमंतपुर टर्मिनल अंतर्देशीय जल परिवहन के मानचित्र पर आ गया है और प्रधानमंत्री जी की सौभाग्य योजना के तहत 1,36,000 घरों में पहली बार आजादी के बाद रोशनी पहुंचाने का भी काम हो रहा है। अटल जलधारा मिशन के अंदर निःशुल्क कनेक्शन देने का भी काम हुआ है और लगभग पूरे त्रिपुरा में हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल के द्वारा पहुंचे, इसका भी खाका किया गया है। मित्रों, एक नए युग की शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा ने करी है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज जो लक्ष्य 2047 रखा गया है वो त्रिपुरा का कायाकल्प करने वाला एक दस्तावेज बनने वाला है। मैं त्रिपुरा के सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि आइए आप त्रिपुरा की विकास यात्रा में जुड़िए। आइए आप मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा में जुड़िए और भारत जब शताब्दी बनाएगा अपना त्रिपुरा छोटा सा ही परंतु देश का सबसे विकसित राज्य बने, इस प्रकार का पुरुषार्थ हम सब लोग करें। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी त्रिपुरा वासियों को त्रिपुरा स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विप्लव देव जी और विष्णुदेव जी की जो जोड़ी है उसको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने त्रिपुरा को विकास के नक्शे पर ले गए हैं। आप सभी को बधाई देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। आभार व्यक्त करना चाहूंगी आपके इस संबोधन के लिए। इस संदर्भ में अब भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का त्रिपुरा के 50 साल पूरे होने पर त्रिपुरा के नागरिकों को बधाई देने वाला रिकॉर्डेड संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। नमस्कार, खुलुमखा। राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने पर सभी त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत बधाई। त्रिपुरा के निर्माण और इसके विकास के लिए योगदान देने वाले सभी महापुरुषों का आदरपूर्वक
अभिनंदन करता हूं, उनके प्रयासों को प्रणाम करता हूं। त्रिपुरा का इतिहास हमेशा से गरिमा से भरा रहा है। माणिक्य वंश के सम्राटों के प्रताप से लेकर आज तक एक राज्य के रूप में त्रिपुरा ने अपनी भूमिका को सशक्त किया है। जनजातीय समाज हो या दूसरे समुदाय, सभी ने त्रिपुरा के विकास के लिए पूरी मेहनत के साथ, एकजुटता के साथ प्रयास किए हैं। मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा ने हर चुनौती का हिम्मत के साथ सामना किया है। त्रिपुरा आज विकास के जिस नए दौर में नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है, उसमें त्रिपुरा के लोगों की सूझबूझ का बहुत बड़ा योगदान है। सार्थक बदलाव के 3 साल इसी सूझबूझ का प्रमाण है। आज त्रिपुरा अवसरों की धरती बन रही है। आज त्रिपुरा के सामान्य जन की छोटी छोटी जरूरतें पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर काम कर रही है। तभी तो विकास के अनेक पैमानों पर त्रिपुरा आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। आज बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अब ये राज्य ट्रेड कॉरिडोर का हब बन रहा है। इतने दशकों तक त्रिपुरा के पास शेष भारत से जुड़ने का सिर्फ एकमात्र जरिया रोड ही था। मानसून में जब लैंडस्लाइड से रोड बंद हो जाते थे, त्रिपुरा सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में जरूरी सामान की कितनी कमी हो जाती थी। आज रोड के साथ साथ रेल, हवाई, इनलैंड वाटरवे जैसे अनेक माध्यम त्रिपुरा को मिल रहे हैं। राज्य बनने के अनेक सालों तक त्रिपुरा बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट के लिए एक्सेस की डिमांड कर रहा था। डबल इंजन की सरकार ने इस डिमांड को पूरा किया जब 2020 में अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर बांग्लादेश से पहला ट्रांजिट कार्गो पहुंचा। रेल कनेक्टिविटी के मामले में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। कुछ दिन पहले महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का भी विस्तार किया गया है। साथियों, आज एक तरफ त्रिपुरा गरीबों को पक्के घर देने में प्रशंसनीय काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपना रहा है। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग देश के जिन 6 राज्यों में हो रहा है, उनमें त्रिपुरा भी एक है। 3 साल में जो कुछ हुआ है, वो तो अभी शुरुआत भर है। त्रिपुरा के असली सामर्थ्य का सामना, उस सामर्थ्य को पूरी ताकत से प्रकट करना, उस सामर्थ्य का सामने आना अभी तो बाकी है।
प्रशासन में पारदर्शिता से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक आज जिस त्रिपुरा का निर्माण हो रहा है वो आने वाले दशकों के लिए राज्य को तैयार करेगा। विप्लव देव जी और उनकी टीम बहुत परिश्रम के साथ जुटी है। हाल में ही त्रिपुरा सरकार ने हर गांव तक अनेकों सुविधाएं 100% पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। सरकार का ये प्रयास त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बनाने में बहुत मदद करेगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा तब त्रिपुरा भी अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरा करेगा। ये नए संकल्पों के लिए, नए अवसरों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे चलना है। हम सभी मिलकर विकास की गति को बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश के साथ ही त्रिपुरा सरकार द्वारा त्रिपुरा के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। दृश्य मंच पर आसीन केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव बर्मन जी, माननीय केंद्रीय संचार मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी, দয়া করে একটু শুনবেন। আমরা যারাই রয়েছি প্রেক্ষাগৃহে আমরা সকলে দাঁড়াবো। আজকে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের 50 বছর উদযাপনের এই শেষ লগ্নের অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা আমাদের সম্মাননা জ্ঞাপন করব আমাদের দেশমাতৃকাকে। আমরা সকলেই গাইব আমাদের দেশমাতৃকার জন্য। স্টার্ট। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। সকলকে ধন্যবাদ। আপনাদের